জুটি আমরা বিগত দিনেও দেখেছি সঞ্জু এবং পিকুর জুটি কতটা ভয়ানক হতে পারে। বেঙ্গলে অনেক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিল, কিন্তু এই জিতিয়েছিল এই জুটি। ওদিকে সতীশ আসছে বোলিং করার জন্য। প্রথম ওভার, প্রথম বল, প্রথম ওভার, দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। সামনে সঞ্জু কানোজিয়া। একটু ছোট লেন্থের বল পড়ার পর বাউন্স করে উইকেট কিপারের হাতে। এক্সট্রা बाउंस ছিল। देखिए पहली गेंद प्रॉपर लाइन और लेन पे की पहली गेंद जैसे ही टप्पा खाया और स्विंग विकेट कीपर के हाथ में। इन সুইং প্রথম বলেই পড়ার পর ভেতরে। আর দ্বিতীয় বল তুলে খেলার চেষ্টা ছিল মিড উইকেট অ্যান্ড লং অনের মাঝ দিয়ে, তবে ওখানে ফিল্ডার রয়েছে, সুতরাং রান আসবে না। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है सर दोनों टीमों के लिए। यहाँ से जीतकर सेमीफाइनल में जाना है, इसीलिए दोनों टीम मैदान के अंदर, और दोनों टीम बैलेंस भी है सर। पिकू पॉल, संजू कनौजिया और गेंदबाजी के लिए सतीश रोकने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजों को, और बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना चाहेंगे। एक बड़ी प्रतियोगिता है, वेस्ट बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि। একদমই এই টুর্নামেন্ট একটা ইতিহাস তৈরি করলো বাংলার বুকে। 10 লক্ষ টাকা চ্যাম্পিয়নদের জন্য, 5 লক্ষ টাকা রানার আপদের জন্য, সব মিলিয়ে। পরের বল সতীশ আরো একবার। পিকু মিস্টার বাহুবলী, বল তো উঠেছে হাওয়াতে, আর ওয়ান ড্রপ দিয়ে যাবে মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে 4টে রান। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमी, मगर विद द स्विंग इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट की दिशा में। अच्छा पुल किया, अच्छा टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क यहाँ नजर आया पिकू पॉल का, और अपनी कलाबाजी दिखाना शुरू किया है। बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से आते हुए। এক্সেলেন্ট স্টার্ট এখানে পিকু পলের তরফ থেকে। 2 বল থেকে 8 রান, 2টো বাউন্ডারি। পরের বল সতীশ আরো একবার। সামনে বল তুলে খেলার চেষ্টা, ফিল্ডারকে টপকে গেছে আরো একবার বাউন্ডারির দিকে দ্রুত গতিতে, এবং বল বেরিয়ে গেছে। বাউন্ডারির হ্যাট্রিক। यह दिखाते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और स्कोर को भेजा 13 रनों पर। पिकू काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ঠিক যেটা দেখিয়েছিল 96 সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে সনত জয়সুরিয়া, রমেশ কালুবিথরনাকে সাথে নিয়ে। জায়গা বানিয়ে অফ স্টাম্পের পর সফল করে আগে চলে এসেছিল। 2 খেলোয়াড়ের মধ্যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, তবে এখানে শেষ পর্যন্ত একটা রান সংগৃহীত হলো। প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল এখানে। প্রথম ওভার শেষে রান 14, কোনো উইকেট না হারিয়ে। এডিএস কনস্ট্রাকশন ভালো শুরু এখানে।
सर अच्छा जिक्र किया, इसी तरह से शुरुआत की थी 1996 के वर्ल्ड कप में, जब पावर प्ले के अंदर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना शुरू किया था। 15 ओवर का जो पावर प्ले था उसमें ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू किया, विश्व को दिखा दिया। उसके पहले कुछ श्रीकांत जैसे कुछ बल्लेबाज से पावर प्ले में बड़े बड़े हिट लगाते थे, मगर रोमेश कालुवितरण और सनत जयसूर्या ने 96 वर्ल्ड कप में क्या बल्लेबाजी की थी, और उनको कल यहाँ हम देखेंगे। सनत जयसूर्या और ईडन गार्डन की उनकी वो सेमीफाइनल की गेंदबाजी कौन भूल सकता है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी भी की थी। तो सर इसी तरह से देखिए, पहले तो शुरू किए थे रमेश कालुविथरना और सनत जयसूर्या ने, और उसके बाद महाराष्ट्र और बंगाल का कॉम्बिनेशन बना, सौरभ गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर। और क्या बढ़िया बैटिंग, क्या बढ़िया ओपनिंग पेयर मिला था इंडिया को। सर महाराष्ट्र और बंगाल का कॉम्बिनेशन रहा है, संगीत में रहा है, क्रिकेट में रहा है, साहित्य में रहा है, और दो बड़े राज्य हैं, उनकी संस्कृति भी अलग है और बहुत बड़ी है। एक रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ওখানে বল কিছুক্ষণের জন্য হাওয়াতে ছিল, একটা বিপদের সংকেত বোধহয় ছিল ওখানে, তবে ক্ষয়ক্ষতি কিছু ঘটেনি। তো পিকু পল এই মরশুমে আমরা আগেও বলছিলাম ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে চিড় রয়েছে, ক্র্যাক রয়েছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েও কিন্তু টুর্নামেন্টগুলো যেভাবে খেলছে, এগিয়ে আসছে, দায়িত্ব নিচ্ছে, এক কথায় ওর যে টিমের প্রতি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেঞ্চুরি রিভার্স করার চেষ্টা ছিল ওখানে, ভালো মতন টাইমিংটা করতে পারেনি ওখানে। একটা রান অবশ্যই আসবে। তো আমরা যে কথা বলছিলাম, পিকুর যে দায়বদ্ধতা দলের প্রতি, সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওদিকে রান সংখ্যা 15, কোনো উইকেট না হারিয়ে, মাফ করবেন 16, কোনো উইকেট না হারিয়ে। দীপক বোলিং করছে এই মুহূর্তে, পাঞ্জাব থেকে বিলং করে এই খেলোয়াড় দীপক বিল্লি। পরের বল ডট বল গতির সাথে অফ স্টাম্পের উপর। তো পিকু এখান থেকে যে মোমেন্টামটা পেয়েছে, চাইছে সেটাকে ধরে রাখতে, ওদিকে পড়ার পর যেন একটু সুইং করে বেরিয়ে গেছে বাইরে। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और लेन पर भी गेंदबाजी कर रहे हो, इसी कारण अब तक अच्छी गेंदबाजी रही है। इस बार बड़ा हिट, भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर। छे छे छे। দুর্দান্ত শট ওখানে, অফ স্টাম্পের বাইরের বল যেভাবে টেনে খেলেছিল পিকু। আরো একবার একদম মিডল ব্যাটে ফিল্ডার দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখবে এখানে, ব্যাক টু ব্যাক। इस खिलाड़ी की पूरी बंगाल दीवानी है। इस बार भी भेज दिया तारामंडल में गेंद को सीमा रेखा पार। बिना कोई विकेट खोए पीकू 32 पर। জিও রে বাহুবলী, যেভাবে ব্যাট চলছে, 6-এর হ্যাট্রিক দেখলাম আমরা। 2 ওভার 34 রান, দুর্দান্ত শুরু এখানে
সতীশের প্রথম ওভার থেকে 14 রান, দ্বিতীয় ওভারে দীপক বিল্লি 20 রান, এর থেকে বেটার স্টার্ট হতে পারে না। बाहुबली सुपर हिट हुआ था, मगर ये बंगाल का, वेस्ट बंगाल का बाहुबली सुपर डुपर हिट है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कटप्पा कौन बनते हैं। कोई तो कोशिश करेगा कटप्पा बनने का। ওদিকে দর্শক বন্ধুদের প্রত্যেককে জানিয়ে রাখবো আজকের দিনের এটাই অন্তিম ম্যাচ চলছে। সঞ্জু কানোজিয়া পুল করার চেষ্টা ছিল, ওখানে বল ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে উইকেট কিপারের হাতে, আর প্রথম উইকেটের পতন। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, रफ्तार ज्यादा थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, और बल्ले का किनारा लेके सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई और पहले विकेट का पतन। कटप्पा रहे सतीश, क्योंकि साझेदारी यहाँ कट की है। और देखिए जिस तरह से यहाँ पे डीजे ने गाना बजाए थे, तो यहाँ पे झुमका नहीं गिरा, यहाँ पे विकेट गिरा, और बरेली के बाजार में नहीं, यहाँ पे शहीद भगत सिंह स्टेडियम पे पहला विकेट, पहला सफलता। वापस लौट चुके हैं संजू मैदान के अंदर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिकू पॉल 32 रनों पर खेल रहे हैं, उनका साथ देने मैदान के अंदर देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी संस्कार। তো বেঙ্গল এবার সংস্কারকে দেখেছে একদমই নিজের মধ্যেই এখানে হারিয়ে থাকে, নিজের মধ্যেই ডুবে থাকে, ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ বোঝা যায় না কি ভাবছে কি করবে, তবে মাঠে নামলে ব্যাটটা চলতে থাকে আর রান আসতে থাকে। তো সংস্কারকে পাঠানো হয়েছে এখানে। অফ স্টাম্পের উপর ছিল এবার, ওয়াইডের সংকেত ওখানে। আমাদের আম্পায়ার্স প্যানেল যারা রয়েছেন, রাজা মুখার্জি, শুভ দাস মণ্ডল, গোপাল সাউ, রঞ্জিত পারিদা, প্রথম দিন থেকে যেভাবে আম্পায়ারিং করে চলেছেন, থ্যাংক ইউ। এবং এখানে কিন্তু ফিল্ডিং সাইট রিভিউ নিয়েছে। सर काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता, 10 लाख की इनामी राशि, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 5 लाख, मैन ऑफ द सीरीज रॉयल एनफील्ड, बड़ी प्रतियोगिता, और 16 टीमें उसमें लीग मैचेस, और उसमें भी दुर्गापुर में ये टूर्नामेंट हो रही है। काफ़ी सारा मनोरंजन दर्शकों का भी हो रहा है। वेस्ट बंगाल की पूरे टेनिस क्रिकेट चाहने वाले इस मैच का, इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, और पूरे भारत से भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी अलग अलग राज्य से आए हैं। तो देखिए सर, इससे पहले 2 बार कोशिश किया गया था, मेरे फेसबुक पेज से पोस्ट भी हुआ था, लेकिन उस समय हुआ नहीं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले भी थे, आज भी याद है। लेकिन आज शायद सभी को जवाब मिल गया है यहाँ पे कि दुर्गापुर में पॉसिबल है, और इस वक्त खेला चल रहा है। संस्कार के लिए ये गेंद, कोशिश तो जरूर की गेंद रुकाने की, मगर कामयाब नहीं रहे, और ये गेंद भी जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों की। কনস্ট্রাকশন তারা যেভাবে ব্যাটিং করছে, তাতে করে বাংলার ক্রিকেট প্রেমী মানুষজন আশায় বুক বাঁধছে। ডট বল, তো কারেন্ট রান রেট 15.60, এইভাবে যদি চলতে থাকে প্রজেক্টেড স্কোর 90 থেকে 100-র মধ্যে থাকা উচিত। ওদিকে আবারও সংস্কার ব্যাট চালিয়েছিল, ওখানে সোজা বাউন্ডারির দিকে ছুটে চলেছে, ফিল্ডার রয়েছে ওখানে, রোহিত চন্ডিগড় ছিল ওখানে।
सतीश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। पीकू पॉल काफी अच्छा मनोरंजन किया, 9 गेंदों में 32 रन बनाए। देखना होगा इस टूर्नामेंट में हाफ सेंचुरी करते हैं। और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे मगर वापस लौटना होगा पीकू। সিদ্ধান্ত কি আসে ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ঘটেছিল। সতীশ তার বল গিয়ে সরাসরি আঘাত করেছিল ব্যাটারের পায়ে এবং এখানে সিদ্ধান্ত ও ইউটি আউট। পিকু একটা হতাশা রয়েছে। হতাশাটা ছিল, বুঝতে পারছিল আজকে দিন ছিল, ইনিংসটা আর একটু কন্টিনিউ করতে পারলে বিপক্ষের হাত থেকে ম্যাচটাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, একটা বড় টোটাল সেট আপ করা সম্ভব ছিল। সব মিলিয়ে তৃতীয় ওভারের অন্তিম বল আসবে, 40 রান 2 উইকেট। आते एक बड़ा स्ट्रोक खेला ऑन साइड की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन लिया, दूसरे रन की कोशिश और 2 रन चुरा लिए। ওদিকে স্বরূপদাকে দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত ব্যস্ত, এই টুর্নামেন্টের শুরুর থেকেই অনেক দায়িত্ব রয়েছে কাঁধে এবং আজ আরও একবার সেই দায়িত্ব নিয়ে কাউন্সিলর কাপের কাণ্ডারি ছিলেন এবং এখানে আরও একটা টুর্নামেন্ট যেখানে সাথে জুড়ে গেছেন। তো খেলাপ্রেমী এরকমের মানুষেরা আছেন, তাই খেলাগুলো এগিয়ে চলেছে। 3 ওভারে খেলা শেষ, 3 ওভারে শেষে 42 রান 2 উইকেট। সংস্কার আর হলচল এগিয়ে নিয়ে যাবে পরবর্তী 3 ওভার ইনিংসকে। তো দেখতে হবে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। अच्छा स्कोर पहले 3 ओवर में 2 विकेट वापस लौट चुके हैं, 42 रन बने हैं। अच्छी शुरुआत यहाँ हुई है। मुखर्जी 11 बनाम इस मैच को हम देख रहे हैं, एडीएस कंस्ट्रक्शन के बीच का ये मुकाबला। बिग बैश का ये पहला संस्करण और पहले संस्करण में काफी बढ़िया आयोजन हम देख रहे हैं। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। एक तरफ मुखर्जी 11, दूसरी तरफ देख रहे हैं एडीएस कंस्ट्रक्शन। एडीएस कंस्ट्रक्शन बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी पीकू पॉल ने की, वापस लौट चुके हैं मगर मैदान के अंदर हलचल यादव और उनका साथ देते हुए संस्कार। गेंदबाजी के लिए विशाल आ चुके हैं। विशाल जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं,
देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे विशाल। आने वाले 3 ओवर में कितने रन बनेंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश बल्लेबाजों की होगी, एडीएस कंस्ट्रक्शन की, और दूसरी तरफ उन्हें रोकने का प्रयास होगा मुखर्जी 11 के गेंदबाजों का। हम सभी का चहेता और लाडला खेल है क्रिकेट, और उससे ही ज़्यादा प्यार करते हैं हम टेनिस क्रिकेट से। और टेनिस क्रिकेट आज पूरे भारत में काफ़ी मशहूर खेल हो चुका है, जैसे लेदर बॉल क्रिकेट से भी ज़्यादा मशहूर टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल हो चुका है। भारत के हर एक गांव में क्रिकेट खेला जाता है, हर एक तहसील में क्रिकेट खेला जाता है, और हर एक गांव में एक क्रिकेट की टीम भी होती है। अंग्रेजों ने इस खेल को भारत में लाया, मगर हम सभी का चहेता हो गया ये क्रिकेट का खेल। आज दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में क्रिकेट। विशाल, देखना होगा विशाल किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। काफी मात्रा में दर्शक इस मैच को देखने के लिए पहली बार दुर्गापुर के इतिहास में, इतनी दुर्गापुर के और वेस्ट बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, और दुर्गापुर में सबसे, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, क्रिकेट भी अच्छा होता है, मगर अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि इस टूर्नामेंट में है। नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे खिलाड़ी पूरा सीजन क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट बंगाल में आते हैं, और 3-4 महीना यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर क्रिकेट होता है। विशाल की पहली गेंद उछाल देखने मिली इस गेंद को, और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। पहली गेंद वाइड करार दी गई। फिर एक बार विशाल, 43 रन बने। संस्कार के लिए बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट किया, फील्डर थे वहां, रन लेने की कोशिश कामयाब रही। ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। রানের গতিটা যেন একটু স্তব্ধ হয়েছে, এখানে যে রানটা হচ্ছিল সেই রানটা যেন একটু উঠেছে। तो देखिए सर, यहाँ पे दिख रहे हैं कि बंगले का बहुत चर्चा चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कृष्णा सतपुते थे यहाँ पे, और वो बोल के गए कि खाबार खेते जाबो। वाह जी वाह। विशाल, अच्छा स्ट्रोकिया देखने मिला। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये गेंद जाती हुई रुकाने में कामयाब रहे। हलचल यादव और संस्कार 2 रन चुरा लिए, 2 रन लिए, यहाँ 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। एक साझेदारी यहाँ से करनी होगी, अच्छा स्कोर है। अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मुखर्जी 11 को कमबैक करना होगा, यहाँ से कुछ बिंदी गेंदे, कुछ विकेट यहाँ से चटकाने होंगे। जिस तरह से शुरुआत हुई है 80 रन तक ये स्कोर जा सकता है। देखना होगा, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, और इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता सर। তো স্যার দেখতে হবে এখানে পিকু আউট হওয়ার পর পিকু যে রোলটা প্লে করছিল মাঠের মধ্যে, গ্রাউন্ডের মধ্যে, সেই রোলটাকে প্লে করবে। অ্যাবিলিটি রয়েছে হালচলের মধ্যে, এবং সংস্কারও বড় শট নিতে পারে, তবে কার ব্যাট কখন চলতে শুরু করবে সেটাই দেখতে হবে। আর ধন্যবাদ জানতে চাইবো আমরা কেশব বিল্ডকন আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আরিত্রাস, এ হাউস অফ ডিজাইনার কালেকশন। ধন্যবাদ विनायक इंफ्रा। इस बार फाइन लेग की दिशा में हुक किया और भेज दिया इस गेंद को कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 4 रन। চলের ব্যাট সুইং দেখার মতন। একবার এতটাই ফাস্ট যে একবার ব্যাটে লাগলেই কিন্তু বল বেরিয়ে যেতে চায়। और इसी तरह से एडीएस कंस्ट्रक्शन के 50 रन पूरे होते हुए, 50 रन। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, कामयाब नहीं रही। 1 रन लिया, दूसरे रन की कोशिश, और दूसरा रन लेने में भी कामयाब रहे। इसी तरह से रन करने होंगे, सिर्फ 6-4 से रन नहीं आते, इसी तरह से रन भी आते हैं सर। स्कोर आगे जाता हुआ 52 पर।
2 विकेट के नुकसान पर। दुर्गापुर धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं। 4 अलग अलग राज्य में ये टूर्नामेंट हुई। महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद गुजरात, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद वेस्ट बंगाल। क्या अगला टूर्नामेंट कहाँ होगा? शायद एमपी में होने वाला है, सर ने बताया। बड़ा हिट करने की कोशिश, कामयाब नहीं रहे। लेन बॉल थी, लेन से सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। 52 for 2। পিকু আউট হওয়ার পর যে মোমেন্টামটা একটু একটু করে শিফট হচ্ছিল অপোনেন্টের দিকে, সেখান থেকে এডিএস কনস্ট্রাকশন তারা কিন্তু আবারও ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করছে। হলচল চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কলকাতায় আমরা দেখেছিলাম রেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভার্সেস বেস্ট অফ বেঙ্গল ম্যাচের হিরো থেকে ছিল এই হলচল। अच्छा स्ट्रोक, बड़ा हिट यहां करने की कोशिश रही और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार। पर स्कोर में हलचल शुरू हुई और क्या बेहतरीन स्ट्रोक किया। कवर्स की दिशा में इनसाइड आउट का एक बेहतरीन स्ट्रोक हलचल यादव इनकी बल्ले से। 4 ओवर के बाद 58। 4 ओवर 58 रन 2 विकेट। तो देखिए सर, पीकू और हलचल, तो एक अमरेंद्र बाहुबली है तो दूसरा महेंद्र बाहुबली है। पावर देखिए थोड़ा, बैट में लगते ही वही आपके वाला बात, CX 6। क्या बात है सर। हरियाणा से बिलोंग करने वाले साहिल शिव गेंदबाजी के लिए, संस्कार के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते हैं, लेन पर रखना चाहते हैं। यहाँ वही किया साहिल ने और पहली गेंद बिंदी की। दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बिल्डअप करना चाहेंगे बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि स्कोर एक बड़े स्कोर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 58। इस बार उछालती इस गेंद में और थोड़ी सी धीमी की और एक बिंदी गेंद। তো সাহিল সিভ ভালো শুরু এখনো পর্যন্ত এই ওভারে। অন্যদিকে আগামীকাল আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্পেশাল ডে। একদিকে যেমন দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশের ফাইনাল ডে, ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ মহাসংগ্রাম, শেষ দিনের সংগ্রাম। इस बार सामने के पुल करना चाहते थे, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला। रोहित चंडीगढ़िया बहाते हुए 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया है। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी रही है। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया सर। অন্যদিকে দেখতে হবে ইডেন গার্ডেন্সের সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 32 বছরের যে খরা চলছিল সেটাকে কাটিয়ে ওঠার সুযোগ কিন্তু আরও একবার রয়েছে রোহন গাভাস্কর, যার মনোজ তিওয়ারি, মাফ করবেন, মনোজ তিওয়ারির নেতৃত্বে আগামীকাল দল নামছে এবং ঘোষণাটা হয়ে গেছে BCL এবং কে ব্লকস, যেগুলো কিন্তু দর্শকদের জন্য ফ্রি থাকবে। 59। हलचल इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेला, सामने की दिशा में गेंद गई। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक आते फील्ड करते 1 रन लेंगे, 1 रन से स्कोर आगे। 60 रनों पर यह स्कोर जाता हुआ। हलचल यादव उनका साथ देते हुए संस्कार एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जो टीम इस मैच में जीतेगी सेमीफाइनल में दाखिल होगी। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों को। दूसरी तरफ संस्कार, उत्तराखंड से आए हुए ये बल्लेबाज, देहरादून से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज संस्कार। फिर एक बार अच्छी गेंद देखने मिली। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की इस गेंदबाज साहिल ने। लेग बाइस के जरिए 1 रन मिलेगा। এবং অন্তিম ওভারের আগের ওভার চলছে এটা, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখনো পর্যন্ত মাত্র 2 রান। যে মোমেন্টাম, যে ফ্লোটা ছিল এডিএস কনস্ট্রাকশনের, সেই ফ্লোটা কিন্তু এখানে সাহিল সিভ এসে নষ্ট করেছে বলতে পারি। একটা বল বাকি রয়েছে, এখান থেকে যদি একটা বড় শট আসে হলচলের ব্যাট থেকে, আবারও কিন্তু সেই মোমেন্টামটা ধরে নিতে সক্ষম হবে। रफ्तार ज्यादा थी,
एक्स्ट्रा पेस जनरेट करना चाहते थे, वाइट बॉल करार दी अंपायर ने और 1 रन से स्कोर आ गया। अब तक अच्छा हो रहा है, बड़ा हिट नहीं आया इस ओवर में। स्कोर जो लग रहा था 80-90 की तरफ जाता हुआ, उसे थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पाते हुए और कंट्रोल में लाते हुए 62, 2 विकेट के नुकसान पर धमाका धमाका धमाका, बिग बैश दुर्गापुर। फिर एक बार अच्छी गेंद देखने मिली, टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग सीधा विकेट कीपर के हाथ में। क्या गेंदबाजी की है, सराहना करनी होगी साहिल की। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए, 5 ओवर की समाप्ति, 62 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। धमाका बिग बैश दुर्गापुर। সাতটার থেকে শুরু হবে গ্র্যান্ড ফিনালে। ঠিক বিকেল 5টার সময় আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা অধিনায়ক, বিশ্বকাপ জয়ী খেলোয়াড় সনাথ জয়সূর্যা। তো সেকেন্ড ব্যাটার যিনি 13,000 রান কালেক্ট করেছিলেন সেকেন্ড ব্যাটার হিসাবে, এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচেসের রেকর্ডসেও সে সময় সচিনের পরে সেকেন্ড পজিশন হোল্ড করতেন। सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद को रुकाने की कोशिश वहां नाकामयाब रही और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4-4-4-4-4। चौतीस साल बाद फिर एक बार रणजी ट्रॉफी उठाएगी क्या? कल उसका भी बेसब्री से इंतजार पूरे वेस्ट बंगाल को होगा। देखिए बिल्कुल होगा। तो दादा आप लोग सबसे ज्यादा जीत चुके हैं रणजी, तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं इस बार। वाह, बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में इस गेंद को रोका गया। 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन लिया और स्कोर आगे जाता हुआ 67 पर। दुर्गापुर धमाका बिग 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 बैश। লাস্ট ওভার চলছে, শেষ কয়েকটা বল বাকি রয়েছে, 4টে বল বাকি রয়েছে, রান সংখ্যা 67। এখান থেকে 80তে পৌঁছাতে হলে দুটো বড় হিট লাগবে। इस बार काफी रफ्तार देखने मिली, सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद। राजा इसकी आखिरी ओवर है, इस आखिरी ओवर में बड़ा बड़े हिट लगाना चाहेंगे। हलचल देखना होगा, काफी उम्मीदें होगी एडीएस कंस्ट्रक्शन को हलचल से। दूसरी तरफ मुखर्जी 11 हम टीम देख रहे हैं। आखिरी ओवर राजा, फिर एक बार वही देखने मिला। बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदें, थोड़ा सा दबाव क्रिएट किया, बड़ा हिट लगाना चाहते हैं। आखिरी ओवर है, 67 रन बने, मगर राजा क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले ओवर में भी साहिल, इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा कमबैक किया। आखिरी 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही है, मगर अभी भी ओवर खत्म नहीं हुआ। बड़े हिट यहां से आएंगे तो अच्छा स्कोर बन सकता है। फिर एक बार हलचल, बड़ा हिट, सामने की दिशा में खेला इस गेंद को और भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 6-6-6-6।
का बिग बैश में रन लेने की कोशिश, दूसरा रन लेने की कोशिश वह हुई, कैच नहीं पकड़ सके मगर 2 रन हासिल करेंगे। क्या बल्लेबाजी की, हलचल, इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ की है। तीसरा रन लेने की कोशिश थी और उस कोशिश में रन आउट होंगे। Durgapur Freight Terminal Private Limited, They Group, Keshav Buildcon, Arithras, the House of Designer Collection, Vinayak Infra, ধন্যবাদ রেডিও পার্টনার রেড এফএম 93.5, ইভেন্ট পার্টনার ইউফোরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ধন্যবাদ ব্রডকাস্টিং পার্টনার 7070 স্পোর্টস। তো আমরা ধন্যবাদ জানতে চাইব ইউনাইটেড কোল ক্যারিয়ার, ধন্যবাদ কেশব বিল্ডকন, ধন্যবাদ বিনায়ক ইনফ্রা, ধন্যবাদ দে গ্রুপ, ধন্যবাদ আলম ভাই চিকেন, ধন্যবাদ জুয়েলারি গার্ডেন, বিদিশা নিকেতন, নীলকান্ত মাইনিং, ধন্যবাদ দুর্গাপুর ফ্রেট টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড, থ্যাংক ইউ দে গ্রুপ, ধন্যবাদ জয় মা চণ্ডী ট্রান্সপোর্ট এবং ধন্যবাদ জানতে চাইব রেডিও পার্টনার রেড এফএম 93.5, ইভেন্ট পার্টনার ইউফোরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ধন্যবাদ প্রত্যেকটা দলের কিট স্পন্সর যারা ছিলেন, এম এস দেবদুলাল বিশ্বাস, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, ইউজেজে এন্ট্রাস্ট, দত্ত হিরো, ধন্যবাদ ফরচুন ইনফ্রা, আইটেক, ব্লু অনিক্স, সিটিজেন হসপিটাল, বিধান স্কুল, এনএন কনস্ট্রাকশন, অ্যাকোয়া রিপল, ক্যাপিটাল মিডিয়া, ইউনিক প্রকন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্যাম ট্রান্সপোর্ট, মনীষিকা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মিস্টার গীতেশ সরকার, লাইফ কেয়ার হসপিটাল। তো আরও একবার আমরা জানিয়ে দিতে চাইবো আপনাদেরকে, আরও একবার আমরা পরের ইনিংসে ফেরার আগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইবো আমাদের যারা স্পন্সর রয়েছেন তাদেরকে। ইউনাইটেড কোল ক্যারিয়ার, জয়মাচন্ডী ট্রান্সপোর্ট, নীলকান্ত মাইনিং, ধন্যবাদ কেশব বিল্ডকন, অরিত্রাজ এ হাউস অফ ডিজাইনার কালেকশন, বিনায়ক ইনফ্রা, দুর্গাপুর ফ্রেট টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড, দে গ্রুপ, আলম ভাই চিকেন, জুয়েলারি গার্ডেন, বিদিশা নিকেতন, নীলকান্ত মাইনিং, ধন্যবাদ রেডিও পার্টনার রেড এফএম 93.5, ইভেন্ট পার্টনার ইউফোরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ব্রডকাস্টিং পার্টনার 7070 স্পোর্টস, ধন্যবাদ জানতে চাইব লাইফ কেয়ার হসপিটাল, শ্যাম ট্রান্সপোর্ট, মনীষিকা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিক প্রকন প্রাইভেট লিমিটেড, ক্যাপিটাল মিডিয়া, অ্যাকোয়া রিপল, এনএন কনস্ট্রাকশন, বিধান স্কুল, সিটিজেন হসপিটাল, ব্লু অনিক্স, আইটেক, ফরচুন ইনফ্রা, দত্ত হিরো, ইউজেজে এন্ট্রাস্ট, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, এম এস দেবদুলাল বিশ্বাস, আর সর্বোপরি পুরো টিম দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়, হাতে হাত একসাথে সারা বাংলার বুকে প্রথমবার, সব থেকে বড় এবং সব থেকে সুন্দর। আগামীকাল ফাইনাল ডে, তবে তার আগে আজকের দিনের শেষ ম্যাচে আরও একবার আমরা স্বাগতম জানাবো কমেন্ট্রি বক্সে মার্চেন্ট স্যার অ্যান্ড মুন্না স্যার। पहले बल्लेबाजी करते वक्त एडीएस कंस्ट्रक्शन ने बनाए 74-75 रनों की जरूरत इस मैच को देखने के जीतने के लिए। वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी दुर्गापुर में हो रही है टूर्नामेंट, दुर्गापुर धमाका बिग बैश, ए क्वार्टर फाइनल का मैच। 75 रन बनाने हैं, 75 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी। दुर्गापूरमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये आपण आहोत आणि या मॅचला सर्वांच्या नजरा यूट्यूबला जे पाहतायत त्यांच्यासाठी क्वार्टर फायनलच्या या मॅचमध्ये जिंकणार कोण, एडीएस कंस्ट्रक्शन जिंकणार की मुखर्जी 11 जिंकणार, याचं उत्तर दुसऱ्या डावामध्ये मिळेल। परंतु पाहत राहा दुर्गापूर धमाका बिग बॅश 2023 खेला হবে।
organized by Durgapur Club, Samannay, presented by Hemant Banial sir, ताड़ी भाई सैयद सर। आप देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का ये सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। दो बड़ी टीम आमने सामने, एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11। मुखर्जी 11 टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, पहले बल्लेबाजी का आमंत्रित किया था एडीएस कंस्ट्रक्शन को। एडीएस कंस्ट्रक्शन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 74, लक्ष्य रखा है 75 रनों का। क्या कुछ होगा, क्या घटेगा बीच मैदान में हाल, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं इन सभी का हाल सुनाने के लिए यासीन मर्चेंट सर और मैं खुद मुन्ना। धन्यवाद मुन्ना। फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। जैसे मुन्ना ने अभी अभी कहा, मुखर्जी 11 बनाम एडीएस कंस्ट्रक्शन, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। हालांकि टॉस जीता था मुखर्जी 11 ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया, मगर उनके कैप्टन का क्या ये फैसला सही था, ये तो मैच ख़त्म होने के बाद हमें पता चलेगा। एडीएस कंस्ट्रक्शन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर के मैच में 74 रन यहाँ पे बनाए हैं और 75 रनों का लक्ष्य रखा है। साढ़े 10 बज चुके हैं और अब यहाँ पे धीमी धीमी हवा चल रही है, उसी के साथ फ्लड लाइट्स में ये मैच यहाँ पे जारी है। फ्लड लाइट्स में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता, ये हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, क्या आज भी वैसा ही देखने को मिलेगा। मगर आज रन यहाँ पे बन रहे हैं, विकेट पूरी तरीके से यहाँ पे अपना रूप बदलती हुई दिखाई दे रही है। सलामी बल्लेबाज के रूप में 2 बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुखर्जी 11 की जानिब से, दीपू लेफ्टी और रोहित चंडीगढ़िया। गेंदबाज आकाश, पहली गेंद ठिकाने पे थी, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी उसे, हालांकि सीधे बल्ले से खेला था, बैक टू द बॉलर। फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से एक बार शानदार गेंद, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है आकाश ने। आकाश चंडीगढ़, आकाश तेवतिया गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज का नाम, और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित चंडीगढ़ और दीपू लेफ्टी स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस मरतबा हल्का सा अपील जरूर है, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। सारे खिलाड़ी उत्साह से यहाँ पे भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। निर्धारित 6 ओवर के मुकाबले में 74 रन यहाँ पे बनाए। इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, उसे अपने टो पर जाकर तकरीबन जंप लगाकर उस गेंद को खेल दिया था डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए अंपायर जी ने यहाँ पे इशारा भी दिया है। सांसों पे रखा हो और इस चौके की सहायता से अपने टीम का खाता खोला है दीपू लेफ्टी ने, और अपना भी खाता खोला है इस चौके की सहायता से। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है, और उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग मिड ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात, और उसी के साथ 30 गज के दायरे के बाहर डीप मिड विकेट हमें नजर आ रहा है। फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज दीपू लेफ्टी, मगर
पूरी तरीके से अपने आप से भी नाराज है, असफल रहे। हल्की सी हालांकि गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई थी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता हुआ, मगर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी आकाश द्वारा। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर चकमा दिया है। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 4 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर दीपू लेप्टी हालांकि मौजूद थे। दीपू लेप्टी एक जाने माने बल्लेबाज है, ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और उनके सामने इस तरह की गेंदें करना इतना आसान नहीं है। गेंदबाज आकाश ने काफ़ी प्रभावित किया है। पहले ओवर में कसावट भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी बहुत ही कम देखने को मिलती है मुन्ना। और बिल्कुल आकाश तेवतिया काफ़ी अच्छा शुरुआत किए हैं। यहाँ से मात्र 4 रन पहले ओवर से खर्च किए, अच्छा लाइन लेंथ पकड़ के रखा, वो भी एक ऐसे बल्लेबाज के सामने जो इनफॉर्म बल्लेबाज है। इस वक्त पूरे भारत में टहलका मचा के रखा है, चाहे वो दीपू लेफ्टी हो या फिर रोहित चंडीगढ़ हो। उनके सामने 4 रन का ओवर अच्छा ओवर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि देखिए एडीएस कंस्ट्रक्शन के जो टीम है, एडीएस कंस्ट्रक्शन पहला मैच वो हारे थे, उसके बाद 2 मैच उनको डुओ डाई खेलना था, दोनों जीतना था और दोनों मैच जीता। उसमें एक बड़े टीम को उन्होंने हराया, दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब को हराया, जिसमें आपको बड़े बड़े सितारे नजर आ रहे थे, उस्मान पटेल जैसे प्लेयर नजर आ रहे थे, उस टीम को हराया। तो कहीं ना कहीं आप जब बड़े टीम को हरा के आते हैं, अच्छा खेल के आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। यहाँ पे देखिए अब गेंदबाजी के लिए आए हैं हिमांशु जिंदल, 1 के बाद 4 बगैर किसी नुकसान के मुखर्जी 11। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं हिमांशु जिंदल। हिमांशु जिंदल हालांकि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सारे स्टेट के खिलाड़ी खेलते हुए हमने लगातार 3 दिन देखे। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एमपी, यूपी, इस तरह के सारे स्टेट से सिलेक्टेड खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलते हुए देखना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए। पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद देखिए वही मोमेंटम यहाँ पे मिलता हुआ गेंदबाज हिमांशु ने भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तब ऑफ स्टंप के बाहर यार करने की कोशिश कर रहे थे और उस गेंद को लॉफ करने का प्रयास था। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, गेंद हवा में चली गई थी, मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही शानदार ये नज़ारा 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ज़रिए से इस प्रतियोगिता का लाइव कवरेज। जी हाँ, इसमें तब ओवर पिच गेंद उसे उछाल कर खेला है, मगर डीप मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच वहां पे ड्रॉप होता हुआ जीवन दान भी मिला और 4 रन भी यहां पे मिलेंगे। अंपायर जी से इशारा जरूर आएगा, मगर देखते हैं यहां पे 4 है या 6 रन है। अंपायर जी यहां पे जरूर बताएंगे। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे उनके हाथों से कैच छिटक गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाके गिरी। ये 6 रन बहुत ही तकदीर वाले रहे। संजीवनी चौका मैं कहूंगा, छक्का कहूंगा। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश की थी, मगर डीप कवर में फिर से एक बार सीधे फील्डर के हाथों में खेल गए और ये पहला झटका लगता हुआ दीपू लेफ्टी के रूप में। डीजे
स्कोर पे ये पहला झटका लगा है और ये बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया राजस्थान के ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज दीपू लेफ्टी। अक्सर ये शॉर्ट बॉल पे विकेट गंवाते नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है वहीं आप विकेट गंवाते हैं। वही वह स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल था, एक्स्ट्रा कवर के जानिब ये शॉट खेला था, नीचे फील्डर इस बार कोई गलती नहीं की है। हालांकि उससे पहली वाली बॉल पे जीवन दान मिला था, भाग्य का 6 रन मिला था। और अमूमन देखते हैं कि जिस बल्लेबाज को जीवन दान मिलता है वो फायदा उठाते हैं। जैसे पिछला मैच में आपने देखा फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में कृष्णा सातपुते को जीवन दान मिला और वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो यहाँ पे जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, लेकिन देखिए 11 पे 1 अच्छी वापसी कहेंगे गेंदबाज एडीएस कंस्ट्रक्शन के दोनों गेंदबाजों के द्वारा। इस बीच नए बल्लेबाज वन डाउन बल्लेबाज आसिफ अली, और ये पोजीशन बहुत ही अहम होती है। फिर से एक बार जोरदार अपील पगबदा के लिए और अंपायर जी ने अपने उंगली को आसमान में बुलंद किया है। लेग बिफोर द विकेट, विकेटों के सामने पकड़े गए, बीचों बीच पकड़े जाने की वजह से अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद थी। मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, बल्लेबाजों ने यहाँ पे DRS लिया है, रिव्यू लिया है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि लेग बिफोर द विकेट है या नहीं है। क्या स्टंप के सामने थे जब गेंद पिच हुई, वो कहाँ पे पिच हुई, लेग स्टंप के बाहर थी या ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थी। पिच होने के बाद गेंद कहाँ पे जा रही थी, गेंद की ऊंचाई कितनी थी, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे टोटली जाएगी, देखा जाएगा। और उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे फैसला आएगा तीसरे अंपायर का। और तीसरे अंपायर जी का भी यहाँ पे निर्णय आ चुका है। बल्लेबाज जाएंगे डगआउट में। पर जब भी गेंदबाज होते हैं तब भारतीय टीम के जरिए से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस गेंदबाज ने हैट्रिक अपने नाम की है उनकी याद ताज़ा होती है। कपिल देव, चेतन शर्मा, इरफान पठान, दीपक चहर, कुलदीप यादव, हरभजन सिंह, इस तरह के खिलाड़ियों ने, इस तरह के गेंदबाजों ने हैट्रिक अपने नाम की है। और अब यहाँ पे सुनहरा मौका है हिमांशु के पास। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेला है, कवर के ऊपर से लॉफ करने की कोशिश और इसी के साथ यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम की है गेंदबाज हिमांशु ऑन द फायर। इस धमाका बिग बैश 2023 में ये पहला हैट्रिक हिमांशु के नाम जाता हुआ। 3 विकेट लगातार चटकाया, पहले बल्लेबाज दीपू लेफ्टी को, फिर उसके बाद आसिफ अली को और अब चलता किया है सुरेंद्र जामू को। तो 3 विकेट, पहला हैट्रिक, धमाका बिग बैश का। फेसबुक, ट्विटर, रखा, कहते हैं चील की निगाहें, और रात में ये चील की निगाहें उनकी गेंदों पे थी। लपका कैच और काफी खुश है इस वक्त पूरी टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन।
जी हाँ, हमेशा कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। कैचेस विन द मैचेस। हर कैच को आपको लपकना है। मैं यही बता रहा था मुन्ना कि जब बड़ा स्कोर होता है उसे चेस करना होता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से बल्लेबाजों के ऊपर आ ही जाता है। बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की हर बल्लेबाज ने और यहाँ पे अपने कीमती विकेटों को उन्होंने गंवाया। अब बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे संकट में आ चुकी है। इस बीच नए बल्लेबाज, जी हाँ, फिर से एक बार उसे लॉफ किया है जरूर, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है और एक बैक टू बैक, ये चौथा लगता हुआ झटका। आकाश को पहली गेंद पर यहां पे सफलता प्राप्त होती हुई, बहुत ही खराब सिचुएशन में, बहुत ही खराब हालत, खस्ता हालत, बुरी हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम की। और देखिए यासीन सर, यही 11 रन है जहां पे 0 विकेट था और यही 11 है जहां पे 4 विकेट हो गए, यानी पिछले 4 गेंदों में, पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों पे 3 विकेट और इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, क्योंकि बल्लेबाज को आउट करने के लिए मात्र एक गेंद काफी होती है। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है। गेंद थोड़ी देर हवा में थी मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। के बाद यहां पे रनों की संख्या आगे सरक रही है। स्कोर मूव्स ऑन 15 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हां, आकाश कहर बरसा रहे हैं। हर एक गेंद हम देख सकते हैं गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कभी अंदर आ रही है, कभी बाहर की तरफ जा रही है। गेंदों को कट करना जानते हैं। गेंद यहां पे हरकत कर रही है इस माहौल का, और उसी के साथ इस विकेट का पूरी तरीके से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। इस विकेट के ऊपर कहाँ पे बाउंस है और कहाँ से गेंद कट हो रही है उसका अंदाज़ा लिया, मगर इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर भटके थे। अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हाँ, ये देखिए गेंद इस मरतबा टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर टप्पा खाया था गेंद ने, तकरीबन 7वें या 8वें स्टंप पे हम कह सकते हैं। हेलो यासीन भाई, हैट्रिक किसने ली है अभी, जरा उनका नाम बता दीजिए जरा प्लीज। हिमांशु जिंदल, तो इस गेंदबाज ने हैट्रिक अपने नाम प्रणव की दा है। की तरफ से 5,000 रुपये हिमांशु जिंदल को अनाउंस कर दीजिए। प्रणव दा, सम्माननीय प्रणव दा, इनकी जानिब से हैट्रिक वीर के लिए 5,000 रुपए की इनामी राशि। वेरी वेल डन हिमांशु। जी हाँ, फिर से एक बार लॉफ करने की कोशिश कर रहे थे, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे निकले थे, मगर फिर से एक बार गेंद कट कर होती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी। गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद वहां पे फील्ड होती हुई रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, ना ही यहाँ पे बल्लेबाजों ने कोशिश की। बल्लेबाज अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर है, मगर फिर से एक बार वही नतीजा
फील्डर को ढूंढ लिया है, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और एक यहां पे बड़ा झटका लगता हुआ और एक बड़ी मछली जाल में। तो वो भी बोल दीजिए, जितने एक एक विकेट भी जो भी लेगा प्लेयर 1000 रुपये पर विकेट पे। प्रणव दा की जानिब से हर विकेट के लिए यहाँ पे 1000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। प्रणव दा अपने चहीते खिलाड़ियों के ऊपर बहुत खुश है, उनका खेल देखकर बहुत ही खुश हुए हैं और इसी वजह से सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे खिताब देकर नवाजते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि इससे बल्लेबाजों के या गेंदबाजों के जो भी खिलाड़ी है उनके हौसले बढ़ते हैं, उनका आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ता है। यासीन भाई, एक और अनाउंसमेंट है, जो फील्डिंग टीम है अगर वो जीत जाती है तो प्रणव दा और सिराज भाई की तरफ से आज बिरयानी उनकी तरफ से होगी, जो यहाँ की सबसे फेमस बिरयानी है, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, तो आज उनकी तरफ से डिनर होगा वो ऑर्गेनाइज। वाह क्या बात है, यानी आज दावत भी होगी। अगर जीतेंगे तो गेंदबाजी करने वाली टीम तो बहुत सारे इनामों की राशि यहाँ पे अनाउंस हमारे इस प्रतियोगिता के डायरेक्टर की आवाज़ आप सुन रहे थे माइक्रोफोन से। जी हाँ, मगर इस मरतबा बेसब्री से इंतजार था इसी तरह के स्ट्रोक का। ओवर पिच गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया 6 रन के लिए, शानदार झन्नाटेदार छक्का। अब 3 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर तकरीबन आधी टीम मैदान से बाहर लौट चुकी है। अब यहां से मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल है, मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से अब 18 गेंदे बचे हैं। 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए अब यहाँ से 53 रन, यानी गेंदे हैं 18, रन चाहिए 53। और आपने आज के ही दिन में एक मुकाबला देखा, आपने जब दो टीम आमने सामने थे, दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब और एनबी अवध कामाक्षी की, तो बड़ा लक्ष्य था, 97 का टारगेट था, वो चेस हुआ है। हालांकि वो दिन का मुकाबला था, ये रात का मुकाबला है, लेकिन जब क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। कहते हैं ना, डैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ से कह सकते हैं संभव है, असंभव नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लेकिन बहुत तेज मारने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा है, विकेट कीपर नीचे, उनका मिलेगा सहारा। विकेट नंबर 6, छक्के की प्रयास हुई थी, बल्ला से छक्का तो नहीं आया, मगर यहां पे विकेट का छक्का लगा है मुखर्जी 11 को। कौन आया है? हिमांशु जिंदल, 4 गेंदे 4 विकेट। पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों पे 3 विकेट आया था और इस ओवर की शुरुआत पहली गेंदों पे विकेट आई है। और ये रिकॉर्ड दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का ये रिकॉर्ड है। हैट्रिक विकेट उनके नाम गया और हैट्रिक के बाद 4 गेंदों में 4 विकेट। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। मजा आ रहा है, मैच देखिए, गेंदबाजी किस तरीके से हो रही है, एक करके एक बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा रहे हैं। 22 रनों पे 6ठा विकेट गंवा दिया है। कमेंट्री छोर से हिमांशु जिंदल तैयार होते हुए, क्या इस टूर्नामेंट का 6 गेंदों पे 6 विकेट हो पाएगा? कोशिश तो जारी है हिमांशु जिंदल का, नए बल्लेबाज हैं। और ये एक और जोरदार अपील, ऐसा लगा था कि शायद दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंपायर काफी चतुर और चालाक। इस अपील में उत्साह ज्यादा दिखा, विश्वास बिल्कुल कम दिखा। तो एक बिंदी गेंद आती हुई,
इस बार ऊपर गेंद, हवा में बॉल, नीचे फील्डर, और ये पहला 5, इस टूर्नामेंट का पहला 5। हिमांशु जिंदन के लिए दमदम एपेक्स का ऑनर संजय की तरफ से 2000 रुपये। सरोजदा, मूल मंच का जो माइक है वो ने ऑफ कर देंगे। एक और तेज शॉट, इस बार पीछे फील्डर नहीं, और जब तक कि फील्डर पहुंच पाते गेंद निकल गई सीमा रेखा बाउंड्री के पार। दो फील्डर थे, तेज दौड़े थे, और दो फील्डरों के बीच में वो दरार थी, और उस दरार से गेंद फरार हुई है, और रन मिलेंगे 4। इस बार भी हवा में गेंद है, नीचे फील्डर पहुंच तो गए हैं, क्या पकड़ पाएंगे, बॉडी एलिवेशन मिला नहीं, निगाहें आखिरी समय तक बॉल पे रही नहीं, और यहां पे मिलेगा 4 रन। और ये महत्वपूर्ण चौका विशाल के बल्ले से आता हुआ, दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका। सबसे 5000 रुपया 5 विकेट के लिए। काफी अच्छा बॉलिंग करते हुए संजय की तरफ से 5000 रुपये। दमदम अपेक्स के ऑनर संजय जी ने घोषणा किया है 5000। ये देखिए सीधा हमारे कॉम बॉक्स के ऊपर से ये करारा प्रहार, और मिलेगा 6 रन। दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर आता हुआ। साल गोदारा लेफ्ट हैंड के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। ओवर की हुई है समाप्ति 4 के बाद 36, 7 विकेट के नुकसान पे 36 लॉस ऑफ 7 आफ्टर 4 ओवर। मुखर्जी 11। ये विशाल की बात की जाए तो राजस्थान का ये खिलाड़ी, जब मैं पहली बार राजस्थान गया था वहां पे इस खिलाड़ी को मैंने देखा था। वो उस टूर्नामेंट में चूरू रात्रिकालीन में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया था। बहुत अच्छा बल्लेबाजी और गेंदबाजी किए थे, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा लेट आना हुआ, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में भी चांस मिला नहीं, लेकिन आए हैं तो यहां पे अब कमाल कर रहे हैं। 3 गेंदे खेले हैं, 14 रन बनाए हैं, 2 चौका और 1 छक्का शामिल। तो अच्छा स्पेल रहा हिमांशु का। हालांकि आखिरी 3 गेंदों में वो 14 जरूर खर्च किए, लेकिन अच्छा स्पेल घटा है। 5 विकेट अपने नाम की, और पंजा खोलने पे दमदम अपेक्स के ऑनर संजय भाई ने 5000 रुपए देने का घोषणा किया। हैट्रिक विकेट पे प्रणव दा के तरफ से भी 5000, यानी 10,000 का काम हो चुका है। यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। सनी अब निराश कदमों से।
अब नए बैटर राजा आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और देखिए गेंदबाजी के लिए राजू मुखिया को गेंदबाजी के लिए लाए हैं, और पहली बॉल पे राजू मुखिया ने विकेट दिलाया है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज राजू मुखिया, पूरे भारतवर्ष में इनका गेंदबाजी का इस वक्त बोलबाला है। ये अच्छी गेंद, एक और अच्छा बॉल। राजू मुखिया की बात की जाए तो सुप्रीमो चषक जैसे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर रहे थे। और इस बार देखिए क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया था, संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आई है। पिछली डॉट गेंद थी और ये सिंगल, लेग बाई का सिंगल आया है। अब स्ट्राइक लेंगे विशाल गोदारा, उनके सामने राजू मुखिया। और ये देखिए काफी तेज शॉट, एक्स्ट्रा कवर खाली है। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस इनटू द स्टैंड, 4 रन। और आज का ये मुकाबला आखिरी मुकाबला है, आज के रात का ये आखिरी मैच है तीसरे दिन का। और ये देखिए बैकअप एंड, यानी थोड़ा सा गति में परिवर्तन, गेंद को पीछे खींचा, बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा, मिला एक और विकेट, विकेट नंबर 9। और मैं बता दूं दर्शकों को, यूट्यूब से जुड़े जितने भी दर्शक हैं, ये आज तीसरे दिन का खेल चल रहा है और कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन, फाइनल डे होगा। और कल फाइनल डे में 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 द ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। तो कल 5 मैच खेले जाने हैं और कल का जो रिपोर्टिंग टाइम है टीम का वो 9:30 है और मैच शुरू हो जाएगा। पहला बॉल डिलीवर किया जाएगा 11 बजे सुबह के वक्त में। ये मैच एडीएस कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अब थोड़ा सा पकड़ और बरकरार करते हुए, अब आखिरी जोड़ी है, कहते हैं ना जब तक है सांस तब तक है आस, इसी उम्मीद के साथ। लेकिन यहां पे तो ओवर की समाप्ति 5 के बाद स्कोर 41, 9 विकेट के नुकसान पे 41, लॉस ऑफ 9 आफ्टर 5 ओवर। मुखर्जी 11 मुश्किल में है इस वक्त, यहां से 6 गेंदों में चाहिए 34। समीकरण के हिसाब से बन सकते हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मुश्किल में फंसे हुए हैं। 5 ओवर 41 रन, 9 विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान के बीचों बीच। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला और ये सुपर 8 का दूसरा मुकाबला यानी क्वार्टर फाइनल नंबर 2। आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं सोम सिंह, एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज, लंबे कदकाठी के गेंदबाज। और ये देखिए आगे लेन था, उसके बाद उछाल प्राप्त किए। यही तो खासियत है, जब आपके पास कदकाठी लंबा होता है थोड़ा सा आप लंबाई का भी फायदा उठाते हैं गेंदबाज। वही करते हुए सोम सिंह गेंदबाजी के लिए आए, टॉट गेंद डाला, बिंदी गेंदे आई है। यही सोम सिंह है, पहला मैच इनकी टीम गंवाई थी। और ये बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, पीछे फील्डर जा रहे हैं बॉल की तरफ। जब तक कि बॉल फील्ड करते, मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, 1 रन मुकम्मल किया। अब यहां से 4 गेंदों में चाहिए 33 रन। अब ये समीकरण के हिसाब से अगर देखी जाए तो कोई अतिरिक्त बॉल अगर ना डाली जाए तो ये मुकाबला लगभग जीत तय कर चुकी है, सुनिश्चित कर चुकी है एडीएस कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से पीकू पॉल की कप्तानी यहां पे काफी अच्छा जाता हुआ। किसी टीम के लिए आसान नहीं होता है कि पहला मैच आप गंवाते हैं, उसके बाद जो भी मैचेज होते हैं आपके वो डू और डाई होता है और वहां से डू और डाई वाले मैच में लगातार जीत हासिल करते हैं।
और वहां से एक बड़ी टीम को भी उन्होंने मात दिया था। एडीएस कंस्ट्रक्शन एक मैच हारे थे एनबी अवध कामाक्षी से, उसके बाद वो मनीष 11 झारग्राम को हराया, फिर उसके बाद दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब को हराया और उसके बाद क्वालिफाई किया सुपर 8 में। अब लगभग देखिए मुखर्जी 11 से मुकाबले जीतते हुए दिख रहे हैं। 3 गेंदे यहां से बचे हैं और रन चाहिए 33। एक बार फिर से काफी जोर से मारने की प्रयास, एक और बिंदी गेंद, 2 गेंदों में चाहिए अब 33 रन। सोम सिंह, दीपक खाता खोलना बाकी है और यहाँ पे खाता खोल के भी करेंगे क्या। टीम इस वक्त मुश्किल में है, मुश्किल ही नहीं बल्कि पूरी बीच मझधार में फंसी हुई है, यहाँ से निकाल पाना अब असंभव सा लगता हुआ। 1 गेंदे 33 रन। आखिरी गेंद इस टूर्नामेंट के तीसरे दिन का ये आखिरी गेंद और बिंदी गेंद आती हुई इसी के साथ 32 रनों से इस मुकाबले को एडीएस कंस्ट्रक्शन ने मुकाबला जीता है और पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। आप तमाम दर्शकों को बता दें तो ये दूसरी टीम बनी है जो पहुंची है सेमीफाइनल में। पहली टीम पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा और दूसरी टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन। और कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और एक ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला जो तय करेगा कि दुर्गापुर धमाका बिग बैश के चैंपियंस कौन है, 10 लाख किसको मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कल इसी मैदान से मैच शुरू होगा। 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 पे ध्यान रखेंगे सभी टीम और 9:35 में रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। और पहला मैच हेलो हेलो राजदा राजदा आपका डिनर जितना भी है ना वो अपना जो स्पॉन्सर हैं अपने, मैंने आपसे मिलाया था, उनकी तरफ से उन्होंने बिरयानी ऑर्डर किया हुआ है आपको। तो 15 बिरयानी आ रही है जो यहाँ की सबसे फेमस है, तो अपने प्लेयर को बोलिएगा कि यहाँ पर ही रुकिए, तो उन्होंने आ रही है अभी। ठीक है, ओके। तो दोस्तों कल पहला मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल